स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। યોગ અને યજ્ઞ અમારી ભારતીય સંસ્કૃતિના તો મૂળ તત્વ છે અને આપણે જ્યાં સુધી સંસ્કૃતિ સાથે પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલા હોય ત્યાં સુધી આપણા દેહમાં કોઈ રોગ નહીં થાય અને જ્યારે જ્યારે અમે આપણી પ્રકૃતિથી અને સંસ્કૃતિથી દૂર જઈએ છીએ ત્યારે ત્યારે આપણા તનમાં મનમાં રોગ અને વિકાર થાય છે। ઘેરમાં શક્ય હોય તો એક એવું વાતાવરણ બનાવો કે એક સ્થાન ધ્યાન યોગ પૂજા પાઠ માટે હોવું જોઈએ। ત્યાં બેસીને તમે યજ્ઞ કરી શકો, ધ્યાન કરી શકો અને ત્રાટક પણ કરી શકો। આંખની સામે, આંખની પેરેલલ આ ત્રાટક આમ લઈને બગેર પલક ઝપકે આંખો આમ ખોલીને સતત એને જોવાનું। 2 મિનિટથી પ્રારંભ કરીને આમ 5-10 મિનિટ સુધી આ ત્રાટક કરી શકાય। આંખ માટે, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન માટે આ પરમ ઔષધ છે। આમ દીપકનો, સૂરજનો ત્રાટક કરી શકાય। દરરોજ આ યજ્ઞ કરવાથી, દરરોજ યોગ કરવાથી, સત્સંગથી, સ્વાધ્યાયથી, સાત્વિક આહાર, વિચાર, વાણી, વ્યવહાર, સ્વભાવથી, વ્યાપારથી જ્યાં જ્યાં જીવનમાં સાત્વિકતા રહેશે ને ત્યાં ત્યાં આપણા જીવનમાં કોઈ રોગ વિકાર થાય। આ તો યોગની વાત થઈ। આમાં જ ઓંકારનું ધ્યાન, ગાયત્રીનું ધ્યાન, અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરો બધા અને આ સંગીતનો અભ્યાસ, આ બધું કરીને ઘણા બધાએ પોતપોતાના રોગ મટાડ્યા છે। અને આજે અમે વાત કરીશ કે તમે ઘેરમાં કોઈ પણ માળા ધારણ કરો, કોઈ પણ તિલક કરો, ચંદન આદિનો, એનો પણ પ્રભાવ હોય છે મન ઉપર। સ્વચ્છ વસ્ત્ર ધારણ કરો, સ્વસ્થ વસ્ત્ર, સ્વસ્થ વિચાર, સ્વસ્થ સાત્વિક આહાર, વાણી, વ્યવહાર, સ્વભાવ, વ્યાપાર, જ્યાં જ્યાં સાત્વિકતા રહે છે એવું કોઈ પણ કામ જેનાથી તમને આત્મગ્લાનિ થતી હોય એવું નહીં કરતા। અને એ તો યોગ કરતા કરતા તમારા ઘણા બધા વિકારો મટી જશે। સાથે સાથે થોડુંક બેઠજો બેઠા આત્મસંયમ રાખવાનું। આ ઘરમાં ગાયનું દીપક, યજ્ઞ પૂરું નહીં થાય તો ગાયનું દીપક અને આ સંભ્રાણી કપ એમાંથી આ સુગંધ આવે ને એનાથી મનમાં શાંતિ મળે। અને એ અમે લોકોને પણ આપ્યું છે। અને શંખનાદ કરો, એનાથી પણ, શંખનાદથી પણ, અને અમારા ઘણા બધા ભાઈઓ પણ પશ્ચિમ બંગાળમાં, ઓડિશામાં, મહારાષ્ટ્રમાં, સાઉથમાં પણ ઘણી જગ્યાએ આ શંખ લોકો વગાડતા હોય, પણ ઉત્તર ભારતમાં થોડા ભૂલી ગયા છે લોકો। પહેલે દરેક ઘરમાં શંખ હોય જ, અત્યારે બધા ભૂલી ગયા। એટલે આમાં શંખનાદ પણ અડધી મિનિટથી માંડીને 1-2 મિનિટ સુધી કરી શકાય। આમ અમારો રજનીશ તો આમ 2-2.5 મિનિટ સુધી કરે।
સતત આવી રીતે શંખ વાળવા. અને સૌથી વધારે સરસ છે આ અનુલોમ વિલોમ. અનુલોમ વિલોમ કરજો. અને કોઈને અવસર મળે તો વાંસળી વાદન પણ શીખી લેજો. જેમાં અમારા છોકરો વાંસળી વાદન કરી રહ્યા છે, આમ બાંસુરી વાદન. અને તમે આમ બાંસુરી લગાવીને આમ કોઈ પણ સંગીતમાં તમારી રુચિ હોય તો સંગીતમાં, સ્વાધ્યાયમાં, યોગમાં, યજ્ઞમાં એકાત્મ થઈને આ યોગ માત્ર વ્યાયામ નહીં, આસન નહીં, પ્રાણાયામ નહીં, ધ્યાન નહીં, આખું જીવન જ યોગ છે. અને એના સાથે તમે જોડાઈ જાઓ ને તો આખું જીવન ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય છે. અહીંયા ઘણા બધા છોકરાઓ છે, છોકરીઓ છે, બાળકો છે અમારા, જે પહેલાં ઘણું બધું ગુસ્સો કરતા હતા, એને મૂડ ઓફ થઈ જતું હોય તો ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો થાય. અને કેવી રીતે એનાથી બહાર નીકળ્યા? એ યોગાસન તો સારું છે જ, યોગિક જોગિંગ, સૂર્ય નમસ્કાર, ઘણા બધા આસનો જે આપણે બતાવીએ છીએ, શશકાસન, આગળ વળવાનું, પાછળ ઉષ્ટ્રાસન, પછી ભુજંગાસન, મર્કટાસન, પવન મુક્તાસન, આ તો બધું કરવાનું, જેનાથી શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન થાય એ કરવાનું. પણ એની સાથે સાથે શ્રદ્ધા રાખવાની ગુરુમાં, ભગવાનમાં, અને પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખવાનો. कैसे आपको ट्रांसफॉर्म हुआ बेटा? क्या नाम है? अनुलोम विलोम करो सब. મારું નામ માધવી દવે છે. હું ગાંધીનગર ગુજરાતથી આવી છું. હા, તમારો હા, એ તો એની માતાજી, એ છોકરો, અને આ માધવી દવી. માધવી, તમારા પતિનું શું નામ? હર્ષિત દવે. હર્ષિત. માધવી, હર્ષિત, और માતાજી સુધાબેન દવે. સુધાબેન દવે. એના તો ઘરમાં આખું યોગનું વાતાવરણ તૈયાર થઈ ગયું છે. પણ એ છોકરીને પહેલા ગુસ્સો આવતો હતો. હા, મને આમ પેલું હોય, બહુ ગુસ્સો આવી જતો હતો નાની નાની વાતમાં. અને ગુસ્સો આવે એટલે માથું દુખવા માંડતું હતું. અને ગુસ્સો આવે ને, અને ગુસ્સાને આપણા ઉપર કાઢે તો પોતાનું હનન કરે, બીજાને ઉપર કાઢે તો બીજાને પણ હિંસા કરે. તો એ પછી આમ ગુસ્સો આવે તો એ ગુસ્સાને અંદર રાખી લે તો પછી માથામાં ચડી જાય ગુસ્સો. પછી જ્યારથી આ યજ્ઞ ચિકિત્સા ને પ્રાણાયામ ને યોગ કરવા માંડી છું, ત્યાંથી મારો ગુસ્સો પણ શાંત થઈ ગયો છે. અને મને જે માથું દુખવાનો જે પ્રોબ્લેમ હતો એ પણ સોલ્વ થઈ ગયો છે. હા, એ મોટી વાત કરી લીધી. હા, તો ચલો, બહુ બહુ અભિનંદન છે માધવીનું. હા, નહીતર આ ગુસ્સો આવે ના તો માણસ આમ પાગલ થઈ જાય. ક્રોધાંધ કહેવાય. કામાંધ થઈ, લોભમાં લોભાંધ થાય. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકારમાં માણસ આમ પાગલ થઈ જાય, ગાંડો થઈ જાય. તો એટલે આપણે આ અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત, પ્રાણાયામ અને થોડાક આસનો કરતાં કરતાં આ બધા માનસિક જે વિકારો છે, ઇમોશનલ જે ડેફિશિયન્સીસ છે, ડિસ્ટ્રેક્ટિવ થિંગ્સ છે, નેગેટિવિટી છે, નકારાત્મક ઉર્જા સ્પંદનો છે, એનાથી આપણે મુક્ત થવાનું છે. તો અત્યારે માધવી એ પણ એકદમ શાંત થઈ ગઈ છે. યોગ, યજ્ઞ, સત્સંગ, સ્વાધ્યાય કરીને. અને સૌથી મોટી વાત, એની સાસુ માને શું હતું માતાજીને? હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ હતો મમ્મીને. હાર્ટમાં કેલ્શિયમ ડિપોઝિશન, કેલ્શિયમ ભેગું થઈ ગયું હતું. અને અર્જુનની છાલ, દાલચીની પીવીને 2013 में 12 में कब डिटेक्ट हुआ था? 2013 માં ડિટેક્ટ થયું હતું. અને અત્યારે સતત કરતા બધું મટાડી નાખ્યું. તો આ મોટી વાત છે. ઘણા બધા લોકો આમ કે આનાથી શું થાય? અર્જુનની છાલથી યજ્ઞ કરજો. અર્જુનની છાલ અને દાલચીની અમે બધાને આપીએ છીએ. અર્જુનની છાલ, દાલચીની, અને એનાથી યજ્ઞ કરજો. એનો જો કાળો પીજો, એની બસ્તી પણ લઈ શકાય. અને પ્રાણાયામ કરજો, દૂધનો ઉપયોગ કરજો, હાર્ટ સારું થઈ જાય. આ તો એક एग्जाम्पल છે. तेरे को क्या होता था? स्वामी जी प्रणाम. मुझे ऐसी छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. अभी मैं प्राणायाम करने लगी तो थोड़ा सा यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगी हूँ. ઘણા બધાને નાનકડી વાતમાં ગુસ્સો આવે. बात बहुत बड़ी नहीं होती है,
छोटी छोटी बातों में हम इतने ज़्यादा एक भंवर में फंस जाते हैं क्या, और अपने को ऐसा लगता है कि हम तो इससे बाहर ही नहीं निकल सकते। देखो एक बात सभी सुन लो, तुम्हारे घर परिवार में कितने लोग होंगे? 5 10? कोई बहुत ही बड़ा परिवार हो, एक साथ भाई भतीजे चाचा ताऊ फूफा फाफी रहते हो तो 50। 5 से 50 में सारा तुम्हारा घर परिवार समा जाता है। इससे ज़्यादा तो मैंने किसी को देखा नहीं। और मेरे परिवार में तो मेंबर जो पेड और अनपेड, तुम्हारे घर में भी 1 2 तो होते ही है ना, पेड भी, बर्तन साफ सफाई करने वाले, ड्राइवर, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत होता ही है। तुम्हारे घर में पेड अनपेड 5 10 50 होंगे। हमारे परिवार में लाखों लोग तो पेड हैं, करोड़ों लोग अनपेड हैं। और उसमें सामान्य सी बात है, कुछ बहुत अच्छा करते हैं और कुछ तो मेरी आंखों के सामने उल्टा उल्टा कर देते हैं। यदि मैं उनसे अपना मूड खराब करूं तो मेरा तो मूड कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो एक तो ये उपाय है, धीरज रखो। क्या रखो? आदमी धैर्य खो देता है। और गांव में बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अरे भाई क्यों आपा खो रहा है, अपने आपे में रह भाई। अपनी निजता से दूर नहीं होना और छोटी छोटी बातों में अपने को मन को नहीं लगाना। समझ गई बेटा? छोटी छोटी बातों को मन में नहीं जगह देना, मन पर नहीं लगाना, उनको अवॉइड करते हैं। 4 बातें बताते महर्षि पतंजलि। मेरे साथ एक सूत्र बोलो, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, विषयाणाम, भावनातश, चित्त प्रसादनम। तो एक उपाय है मैत्री। क्या है बोलो? मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। सबके प्रति मैत्री। आप कहेंगे कि जी बुरे लोगों के प्रति कैसी मित्रता रखें? अरे एक बात बोलिए ना अगली विषय में। सबके प्रति मित्रता रखो, जो भी अच्छे लोग हैं उनके प्रति। और जो दुखी है उनके प्रति करुणा का भाव रखो। यदि मैं करुणा नहीं रखता तो इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा संगठन और सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक इतना ये प्रपंच, इतनी सेवा, ये सब क्यों करता? मतलब मैं साधु आदमी, मेरे को क्या लेना देना? पेट तुमने बढ़ाया, तुम अपना जानो। वेट तुमने बढ़ाया, तुमने माल खाओ, तुम भोगो। ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। तुमने अपना दिमाग खराब किया, अपना दिल खराब किया, अपना शरीर खराब किया, तुम जानो मेरे क्यों पीछे पड़े हो? लेकिन नहीं। बात तो तुम्हें भी समझ में आ रही, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं। इससे पूर्ण प्रसन्नता नहीं आएगी, संसार सुखी नहीं होगा। संसार में जो स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुशहाल हैं, उनको देख के खुशी होनी चाहिए। इसलिए बात क्या कही जाती है? जो लोग दुखी रहते हैं, अपने दुख से कम दुखी, पड़ोसी के सुख से। मैं कहता हूं, हे भगवान, मेरे सारे अड़ोसी पड़ोसियों से लेकर के सारे संसार के लोगों को सुखी कर दो, जिससे मुझे दुखी ना करे। हाँ, क्योंकि जो आदमी दुखी होगा वो किसी न किसी दिन अपने को भी दुखी, पाकिस्तान दुखी अपने को दुखी करता है, क्योंकि अपनी चीजों को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कभी पीओके में बम फोड़ता है, कभी अपने वाले जम्मू कश्मीर में बम फोड़ता है, कभी तालिबान इधर उधर अफरा तफरी मचाए रखते हैं। जो दुखी व्यक्ति होता है, जो दुखी समाज होता है और दुखी राष्ट्र होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में क्या हुआ? अब सारी दुनिया एक देश से डरी हुई है भाई। यहां यदि आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर हो गया तो ये तो अनऑफिशियली आतंकवाद कहीं पनपता हो
तो इस संसार के लोग कहाँ कहाँ क्या क्या उपद्रव कर सकता है। बुरा करने में क्या लगता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक कितने 11 सितंबर की बात है, 11 सितंबर की बात है। एक दिन में अमेरिका ढा दिया पूरा। क्या देर लगती है। तो सबके प्रति मैत्री रखना, सुखियों के प्रति, सब सुखी रहे, ऐसा प्रयास करना कि सब सुखी रहे, सब समृद्ध रहें, सब स्वस्थ रहें। नहीं तो समाज में असंतोष पनपता है, तो उससे भी बहुत तरह की दिक्कत है। जो दुखी हैं उनको उभारने के लिए करुणा का भाव रखो, उनको उभारने के लिए अपना जो सामर्थ्य है उससे कोशिश करो। और जो बहुत पहुंची हुई आत्माएं हैं किसी भी क्षेत्र में, उनसे ईर्ष्या मत करो, उनसे प्रेरणा लो, उनके आगे सिर झुकाओ। जो बहुत ऊंचे उठे हुए लोग, उनको अपना आदर्श मानो, उनके प्रति बहुत ऊंचे उठे हुए थे पूज्य भाव रखो, मैत्री करुणा मुदिता। और वह जो बिल्कुल ही बेकार आदमी है या बहुत गलत चीजें हो रही हैं, उससे अपने चित्त को हटा लो, उससे उपेक्षा कर दो। उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जिधर ध्यान ना देना हो तो इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो उसको, जो भी है उसका। और यदि तुम समर्थ हो तो फिर उसका मोक्ष कर दो। दो ही चीजें। तो ये मोक्ष करने का काम तो कुछ लोगों के ऊपर है, सब लगे मत ना गलाएं इसमें। तो आज समझ में आई कुछ बात। तो कोई भी बहुत गलत चीज अपने घर में भी होती हो ना, कर सको तो उसको हटा दो उस चीज को, नहीं तो उसको इग्नोर कर। कुछ चीजों को तो हटा सकते हो, जैसे अपने घर में कोई नौकर सुबह से शाम तक अपने को तंग ही करता हो, तो मैं ठीक है तुम और कहीं जा, तुम मेरे को क्यों दुखी कर रहा है। लेकिन बालक दुखी करे तो कैसे क्या करो। ये तो नहीं कह सकते तू और कहीं जा। हस्बैंड को तो आजकल कहने लगे, बोले तो और कहीं जा, और कहीं मर। तू इतना सीधा ना है। तो को जो है पहले बात तो यहाँ से शुरू होती है। पत्नी कहते हैं मैं अपने पियर चली जाऊंगी। पियर मायका एक ही बात है। और कोई गांव से आए हो तो बोले मैं अपना गांव में खेती करने लग जाऊंगा, नौकरी छोड़ दूंगा। पति धमकी देता मैं नौकरी छोड़ दूंगा, या और कुछ ऐसे धमकी देने लगते हैं, इधर उधर चला जाऊंगा, मैं विदेश में चला जाऊंगा। फिर कुछ और थोड़ी मोटी बातें शुरू होती हैं, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं उपवास कर लूँगा, तो उन्हें गुस्सा नहीं छोड़ा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। ये तो रोज़ कार्यक्रम चलता है। फिर वो उसको मनाता है, वो उसको मनाते हैं, छोटी मोटी बातों से। और फिर बिल्कुल ही नहीं लिपटा, बोला अब जो है हद से बाहर बात चली गई है, सुधर जा। तो हम लोग यहाँ तक उलझे हुए होते हैं छोटी छोटी बातों में। तो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी एक दो आदतें खराब होती हैं। आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन एक आदत खराब है, तम्बाकू खाता है, गुटखा खाता है, सुपारी खाता है। आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन गुस्सा करता है। औरत बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन 2-3 महीने में 6 महीने में तो सरारा सा उठता है पूरा। ये कहानियां हर घर में होती हैं। कभी तो ये कहने की सुनने की बातें अलग अलग हो सकती हैं। बच्चे हों, माँ बाप हों, सास ससुर हों, किसी न किसी में कोई ऐसी चीज हो सकती है। इसलिए जिंदगी नाम कंप्रोमाइज का है। क्या नाम है? बहुत बड़ा उपाय है, कंप्रोमाइज करो और अवॉइड करो। कुछ चीज़ों को ऐसे इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो, या तो
समाधान तो अपने आप ही हो जाते हैं। समाधान नहीं होते तब क्या करना? कोशिश तो यही होती है सबकी कि अच्छा हो जाए, नहीं तो उस चीज़ को अवॉइड कर दो, इग्नोर कर दो, या उसको एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो उसको। भाई ये तो भाई इसी के साथ अपने को जीना। जैसे अपने शरीर में बीमारी हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि भाई अब क्या करें, अब तो ये इसके साथ जीना ही है। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, अब जैसे इसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, अब क्या करें? अब उसको हटा देगा वो एक अलग बात है, उसके लिए उपाय करने पड़ते हैं। जिन चीज़ों को हटा सको उनको हटा दो, बाकी कंप्रोमाइज कर लो, कंप्रोमाइज कर लो। जो चीज आप करके अपने आप को फेस ना कर सको वो नहीं करना। ऐसा अपना जीवन बनाओ तो जिंदगी में कभी आप रोगी दुखी नहीं, अशांत नहीं। तो चलो अब तो ठीक होगी बेटा। अब आज से संकल्प ले ले कि छोटी छोटी बातों में अपने मन को उलझाना नहीं है, छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाना, दिल पर मत लो। देखो सबको पता है, घर में बड़े बुजुर्ग कोई ना कोई बता ही देते हैं, देखो बेटा इन छोटी छोटी बातों को चित्त पर मत लो, देखो इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। ये तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों का। जैसे बच्चों की लाख गलती हम माफ कर देते हैं फिर भी उनको अपना ही मानते हैं, जैसे अपनी गलतियों को आदमी अपने आप को तो 100 बार 1000 बार माफ कर देता, दूसरे को माफ करने के लिए तुम्हें एक भी है जिसने बचपन से लेकर आज तक एक भी गलती ना की हो? यदि कोई यूं कहे कि मैंने नहीं की तो ये और गलती कर रहा ऊपर से।